اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اور کوئی پروڈکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دراز سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو دراز آپ کو ایک اپرچونٹی اور دیتا ہے، اور وہ ہے دراز وی اے کی، یعنی دراز ورچوئل اسسٹنٹ. اور اسی وجہ سے اس کورس کو میں نے ڈیزائن کیا ہے کہ دراز ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہے. اور اس کورس میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ وٹ از دراز ورچوئل اسسٹنٹ، ہاؤ ٹو بیکم ورچوئل اسسٹنٹ آن دراز، وٹ آر دا ڈیوٹیز آف ورچوئل اسسٹنٹ، ہاؤ ڈز ا دراز ورچوئل اسسٹنٹ ارن منی، ہاؤ وی کین فائنڈ دراز کلائنٹ. اور آخر میں اگر آپ آنر ہیں اور ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایکسیس کس طرح دی جاتی ہے، یہ سیکھیں گے آپ اس ویڈیو میں. ہیلو ایوری ون، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اینڈ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. ویورز، ویلکم ٹو دراز ورچوئل اسسٹنٹ کورس. اس کورس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وٹ از دراز ورچوئل اسسٹنٹ. ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ایک اس کا کنسیپٹ ہے ورچوئل اسسٹنٹ کا. چلیں میں بہت آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، ایک تو اسسٹنٹ وہ ہوتا ہے جو آپ فزیکلی اپنے آفس میں ہائر کرتے ہیں اور وہ آپ کو موقع پہ موجود رہتے ہوئے آپ کو سروسز فراہم کرتا ہے. تو ایک تو آپشن یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ آپ اس کو ریموٹلی ہائر کرتے ہیں. تو جو ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ سیلف امپلائڈ ہوتا ہے اور ریموٹلی اپنی آپ کو سروسز آفر کرتا ہے. یعنی کہ آپ نے اکثر نام سنا ہوگا ورک فرام ہوم. تو ورک فرام ہوم گھر بیٹھے وہ آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی ہی پلیس پہ، اپنی جگہ پہ، اپنی سسٹم کے ساتھ اور اپنے ہی نیٹ وغیرہ اپنی ساری جو اس کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی آپ کو سروسز دے رہا ہوتا ہے. آپ جسٹ اس سے آن لائن اپنے اکاؤنٹس کو مینیج کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ورچولی کام ہو رہا ہوتا ہے سارا. تو اس لیے دراز لگ گیا ساتھ، تو دراز ورچوئل اسسٹنٹ کا نام لگ گیا. وہ تو دراز جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ دراز ورچوئل اسسٹنٹ سروس پرووائڈر ہیں. اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم ورچوئل اسسٹنٹ آن دراز. کہ دراز پہ آپ ورچوئل اسسٹنٹ کیسے بن سکتے ہیں. دیکھیں، اس کے لیے تو ڈیفینیٹ آنسر، ایک شارٹ آنسر یہ ہے کہ آپ اس کا کام سیکھیں. کام کیسے سیکھیں؟ دو آپشن ہے کام طریقے سیکھنے کے اگر آپ ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں دراز پہ. نمبر 1، دراز کی اپنی یونیورسٹی ہے، دراز university.daraz.pk کے نام سے ہے. تو اس یونیورسٹی سے جا کے آپ اس کے پہلے سارے کورسز لیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے گا کہ دراز کی پالیسیز کیا ہیں، اس کے رولز کیا ہیں، اس پہ کام کرنے کے طریقے کیا ہیں، کیسے وہاں پہ فیچر اپلوڈ ہوتی ہیں، کیسے وہاں پہ پروڈکٹ اپلوڈ ہوتی ہے، کیسے وہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے، کیسے وہاں پہ ڈیلیوری چارجز ایڈ کیے جاتے ہیں، ڈائمینشنز کس طرح کی جاتی ہیں. یا کسی یوٹیوب سے آپ پورا کورس، جیسے کہ میں نے آپ کو سکھایا، تو آپ اس پورا کورس سیکھ سکتے ہیں. میری پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو دراز کورس مل جائے گا 1 to all کر کے. تو اس میں سارا کچھ آپ وہاں سے سیکھ لیں. جب آپ سارا کچھ سیکھ لیں گے تو پھر آپ ظاہر جب سیکھ لیں گے سب کچھ تو پھر آپ کسی اور کو بھی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا اور بیسٹ اس کے جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود سیلر بنیں. آپ خود وہاں پہ اپنی پروڈکٹ کو، اپنے اکاؤنٹ کو کریٹ کر کے، پروڈکٹ اپلوڈ کر کے وہاں پہ سیل کریں. وہاں جو جو پرابلمس آپ کو آئیں گی اکاؤنٹ بنانے سے لے کے چیز بیچنے تک، تو ان سے آپ جو سیکھیں گے وہ ایسا سیکھیں گے آپ کسی کو اچھی سروس دے پائیں گے. تو بیسٹ آپشن یہ. تو دو آپشن میں نے آپ کو بتائیں اگر آپ دراز ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ ایک تو آپ دراز یونیورسٹی سے لرن کریں، یا کسی یوٹیوب سے کورس پورا دراز کا لرن کریں، پورا سیکھیں، یا پھر آپ سیلر بنیں اور سیلر بن کے آپ مزید اپنا ایکسپیرینس کو انہانس کریں. نیکسٹ جو ہمارے پاس کوشچن ہے وہ یہ کہ وٹ آر دا ڈیوٹیز آف ورچوئل اسسٹنٹ. ڈیوٹیز کیا ہے، یعنی کہ جاب ڈسکرپشن کیا ہے. آپ ورچوئل اسسٹنٹ آپ بننا چاہتے ہیں یا آپ بن گئے ہیں، اب آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا سروسز دینی ہے. تبھی تو آپ وہ کوئی اپنے وہاں پہ کوئی کارڈ بنوائیں گے، یا اپنی کوئی ویب سائٹ بنائیں گے، یا کچھ بھی آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈنگ کریں گے، یا کہیں پہ گگ جا کے لگائیں گے کسی فلانس ویب سائٹ پہ. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا سروس دینی ہے، دین ہی آپ وہاں پہ بنا سکتے ہیں. تو جاب ڈسکرپشن سمجھ لیجیے کہ اس نے ورچوئل اسسٹنٹ نے کرنا کیا کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جناب یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو ٹاپ پریورٹی پہ کام ہو سکتا ہے یا انیشیل جو اس کا کام ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اکاؤنٹ کریشن اینڈ ویریفیکیشن. کوئی بھی اگر کلائنٹ آتا ہے وہ اس کا اپنا اکاؤنٹ بنا کے دینا ہے اور اس کو ویریفائی کرا کے دینا ہے اکاؤنٹ اس کو، تاکہ وہ اس کے بعد وہاں پہ اپلوڈنگ شروع کر دے، اپنی پروڈکٹ سیل کرنا شروع کر دے. تو نمبر 1 یہ کہ اکاؤنٹ کریشن اینڈ ویریفیکیشن ہو سکتا ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ ہو سکتی ہے، اور بھی اس کے علاوہ پروڈکٹ سورسنگ ہو سکتی ہے. پروڈکٹ سورسنگ کیا ہے کہ بھائی وہ پروڈکٹ ہنٹ تو آپ نے کر کے دے دی کہ بھائی یہ اچھی پروڈکٹ ہے، لیکن سورسنگ کیسے کریں گے آپ. سورسنگ بھی آپ کر کے دے سکتے ہیں اسے کہ بھائی یہاں سے بائی کر لو، یا یہاں سے امپورٹ کر لو، یا کمپیریزن نکال کے آپ دے سکتے ہیں بجٹنگ کا کہ بھائی یہ آپ کا بجٹ ہوگا تو آپ یہ فلاں جگہ سے چیز خرید سکتے ہیں، یا اس میں آپ کو بینیفٹ زیادہ ہے. پھر پروڈکٹ لسٹنگ ہے. ظاہر آپ نے پروڈکٹ سورسنگ بھی کر کے دے دی، اس کو ہنٹنگ بھی کر دی، سورسنگ بھی کر دی، اب اپلوڈنگ بھی تو کرنی ہے، لسٹنگ بھی تو کرنی ہے. تو پروڈکٹ لسٹنگ بھی ایک جاب ڈسکرپشن میں آپ اس کی علیحدہ سے گیگ بنا سکتے ہیں، اس کی علیحدہ سے سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہر ایک علیحدہ علیحدہ سروس آپ دے سکتے ہیں. کچھ لوگ اکٹھی مانگتے تو آپ وہاں پہ پورا ایز اے مینیجر کام کر سکتے ہیں وہاں پہ. وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے آگے. پھر جناب
प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। देखिए प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट अपलोडिंग आ जाएगी, प्रोडक्ट की एसईओ भी आ सकती है अगर करना चाहें, करवाना चाहें वो क्लब करके। मैनेज हाई क्वालिटी इमेजेस आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ई-कॉमर्स और फ्रेंडली पब्लिश वगैरह प्रोडक्ट पब्लिश करना पड़े, सारा कुछ है ना उसके अंदर आता है, डिस्क्रिप्शन बना के देनी है आप, ईच एंड एवरीथिंग। फिर अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट की मैनेजमेंट भी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है? और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आप पूरा अकाउंट मैनेज करेंगे, तो या पार्शली कुछ आप पार्ट वो आपसे मैनेज करवा सकता है। पार्टिसिपेशन इन कैंपेन्स, यानी कि जो भी कैंपेन्स आएँगी वो उसमें आपने उनको उसमें पार्टिसिपेट करके, उनको जॉइन करके आपने उन्हें टास्क पूरा करना है उनका। क्रिएट बंडल्स एंड कूपन, आप अब हो सकता है आपसे डेली बेस पे या वीकली बेस पे कूपन बनवा रहे हों, वाउचर जनरेट करवा रहे हों, या आपसे बंडल हर वीकली जो बंडल्स आते हैं वो आपसे बार-बार कह रहे हो कि भई आपका ये काम है कि आपने हमारे जो बंडल्स जब भी आएँगे वो आपने क्रिएट करते रहना है। ये भी काम है। कीवर्ड रिसर्च, अब अब एक प्रोडक्ट ढूँढ ली उन्होंने, प्रोडक्ट हंट कर ली, लेकिन ज़ाहिर है उसको टॉप रैंक पे लाने के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। तो कीवर्ड रिसर्च का टूल यूज़ करते हुए या मैनुअली कीवर्ड रिसर्च करते हुए आप उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी एक आपकी सर्विस है, ये भी जॉब डिस्क्रिप्शन है वर्चुअल असिस्टेंट। फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके देना है, कीवर्ड तो निकाल लिया आपने और हंट भी कर ली, अब कंपैरेटिव एनालिसिस भी तो करना ना कि ये सही भी है कि नहीं प्रोडक्ट, ये और तो नहीं कंपैरेटर्स काम करे, तो उसका पूरा एक एनालिसिस निकाल के देना है आपने कि और कौन इस पे काम कर रहा है, कितने में बेच रहा है, क्या रेटिंग है, उसको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिटर्न्स तो ज़्यादा नहीं है उसकी, हमें कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, पूरा एक एनालिसिस आपने निकाल के देना है। फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी एक ऑप्शन आ जाती है, फिर प्रोडक्ट रैंकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन है, फाइनेंस की मैनेजमेंट है, हमें उनका जो पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो जो खर्चे हो रहे हैं सारे, उसको मैनेज करने के लिए भी आप अलग से वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर सकते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर की ही पूरी एक जॉब है, वो आप मैनेज करवा सकते हैं। इतना लास्ट में आप पूरा का पूरा स्टोर मैनेज करवा सकते हैं। वो आप जो डेज़िग्नेशन आपको मिलेगा वो होगा स्टोर मैनेजर। तो ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये अलग-अलग आप सारी ये जेडीज़ हैं, इनको आप एज़ अ सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हाउ डज़ अ दाज़ वर्चुअल असिस्टेंट अर्न्स मनी? कमाएगा कैसे? चीज़ें तो बता दी आपने। क्या-क्या तरीके हैं उसके कमाने के? किन-किन वेज़ से कमा सकता है? कैसे कमाए? ठीक है? तो क्या-क्या मेथड यूज़ करें? आसान अल्फाज़ में मेथड्स आप इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जनाब पहला ऑप्शन ये है कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम पे कर सकते हैं। मीन्स वो आपको कहते हैं यार कि आपको हम एक प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं, वो ये है कि हमारी अभी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो अपलोड करें, या पहले प्रोडक्ट हंट करके दें हमें, ये हमें कुछ 10-15 प्रोडक्ट हंट करके दें, फिर उसकी लिस्टिंग कर दें। ये आपको प्रोजेक्ट दे दिया हमने। अब भई आप 1 दिन में कर लें, 2 दिन में कर लें, 10 दिन में कर लें। तो ये जनाब आप हमें करके दे दें और इसके पैसे बता दें लमसम कितने, आप वहाँ पे लमसम चार्ज करेंगे। एक तो तरीका ये है प्रोजेक्ट बेस वाला, ठीक है? ये प्रोजेक्ट बेस वन टाइम भी हो सकता है, ये प्रोजेक्ट बेस मंथली बेस भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह डील कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आपको कोई कंपनी कोई बंदा पर्सनली इंडिविजुअली आपको हायर कर लेता है और कहता है जी कि हम आपको मंथली सैलरी देंगे 50,000, 60,000, लाख, कुछ भी समथिंग जो भी आपकी उनसे डीलिंग होती है। तो आप हमारा इस जो भी हमारे काम आते रहेंगे वो आप करते रहें। वो आपको फिक्स आवर्स दे देंगे, उन फिक्स आवर्स में आप मंथली बेस पे काम करेंगे। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी के साथ कोलैब कर जाते हैं। वो कहते हैं सर्विस, आप कहते हैं सर्विस मैं दूँगा, प्रोडक्ट आपकी होगी। मिल के हम उसको प्रॉफ़िट हम शेयर कर लेते हैं। 40% आपका और 60% मेरा, ये 60 आपका, 40 मेरा, ये 50-50 कर लेते हैं। तो 3 ऑप्शन हैं यहाँ पे, मेथड हैं अर्निंग के दराज़ वर्चुअल असिस्टेंट के। ये प्रोजेक्ट बेस, मंथली बेसिस सैलरी सैलरी बेस्ड, और थर्ड पे पार्टनरशिप पे। तो जो प्रोजेक्ट बेस है वो आप खुद काम देख के मेहनत से करेंगे। वैसे अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूँ, अगर आप 10 प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं कि 10 प्रोडक्ट हंट भी करनी है आपने और लिस्टिंग भी करनी है उनकी, तो उस सूरत में आप एटलीस्ट उनसे मेरे नज़दीक 30,000 तक उनसे आप लाज़मी लें, क्योंकि पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, आपको टूल का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम काफ़ी स्पेंड होगा। बाकी मज़ीद भी आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखें कि आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट बहुत मुश्किल तो नहीं, तो उस हिसाब से आप उसको डील कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो क्या आ रही है जी कि हाउ वी कैन फाइंड दराज़ क्लाइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, क्लाइंट ना तो ढूँढना आता है उन्हें और ना उन्हें ये पता चलता है कि क्लाइंट मिलेगा कहाँ, या हम अपनी सर्विस सेल कहाँ करें। 3 क्वेश्चन बन गए कि क्लाइंट कहाँ मिलेगा, हम अपनी सर्विस कहाँ सेल करें और कैसे सेल करें। ठीक है जी? तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्लेटफ़ॉर्म स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप वो प्लेटफ़ॉर्म देखें और उसके बाद फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने सर्विस अपनी सेल कैसे करनी है, क्लाइंट कैसे आपने फाइंड करना है।
स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने एक ओपन कर रहा हूँ एक वेबसाइट जिसका नाम है fiverr.com। इस वेबसाइट से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। यहाँ पे आप क्या करें, आप जाके यहाँ पे सेलर बने और सेलर बन के यहाँ पे अपनी गिग बना के सर्विसेज सेल करें। मैं आपको एक कोई एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ और उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप किस तरह से सर्विस सेल कर सकते हैं। ये सर्च में आप जाएँ तो यहाँ पे आप लिखें दराज वर्चुअल असिस्टेंट। आप ये देखें आपके सामने यहाँ पे गिग्स ओपन होंगी। इन्हीं गिग्स को देखते हुए आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी अपनी एडिटिंग करके अपनी पिक्चर लगा के, और यहाँ पे आप अपनी गिग्स बना सकते हैं। इसके बाद इसी तरह की एक और आपको अब मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट बताने लगा हूँ, वो है upwork.com। इस पे भी सेम आप ऐसे ही यहाँ पे साइन अप करेंगे, साइन अप करके अपना अकाउंट बना के, तो जैसे आपने वहाँ पे गिग्स लगाई हैं ऐसे ही आप यहाँ पे गिग्स कॉपी देख लीजिएगा पहले कैसे लगी हैं, और उसमें लगा के आप यहाँ पे अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। आपको क्लाइंट खुद आके मिलेगा यहाँ पे। तीसरी ऑप्शन आपके पास जो है वो है आप फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें। ख़ास तौर पे वो ग्रुप जो दराज वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से आपको मिल रहे होंगे, वो उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें और वहाँ पे अपनी जो सर्विसेज हैं उनको वहाँ पे टाइप करें, पोस्ट करें कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ से क्लाइंट खुद ब खुद मिलेगा। या कुछ लोग वहाँ पर खुद भी पोस्टिंग करते रहते हैं कि जी हमें वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, हमें दराज के लिए फ़लाँ काम के लिए बंदा चाहिए, हमें एसईओ के लिए चाहिए, हमें कीवर्ड रिसर्च के लिए चाहिए, हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए चाहिए, तो आपको वहाँ पे खुद क्लाइंट मिलेगा। आप भी पोस्ट करें और वहाँ से आप खुद भी लें। आप उसके अलावा OLX, आपने नाम बहुत मशहूर सुना होगा। OLX.com पे जाएँ, OLX.com पे जाएँ और यहाँ पे जाके भी आप लिख सकते हैं और अपनी जो सर्विस है वो दे सकते हैं दराज वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से। देखिए जी, अभी यहाँ पे आपके सामने सिर्फ एक बंदे का ऐड आ रहा है, सिर्फ एक बंदे का ऐड आ रहा है। आप यहाँ पे बड़ा अच्छा गोल्डन चांस है, यहाँ पे आप लगाएं और यहाँ से भी आप क्लाइंट गेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 5th नंबर पे मैं बता रहा हूँ enablers.org। enablers का नाम आपने बहुत सुना होगा। ई कॉमर्स के बारे में अगर किसी ने सही से इंट्रोड्यूस कराया है तो वो एक्सट्रीम कॉमर्स है या enablers है। इन दो लोगों ने, दो इदारों ने अखीर बताया है ई कॉमर्स को, ई कॉमर्स क्या होता है। बहरहाल यहाँ पे आप जाएँ enablers.org, यहाँ पे भी आपको वो वही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो फाइवर और अपवर्क आपको दे, लेकिन फ़र्क क्या है, ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट ई कॉमर्स नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से जैसे वहाँ गिग बनती है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, लेकिन आप यहाँ पे भी अपना अकाउंट क्रिएट करें और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे भी आप अपना सर्विस सेल करें। उसके बाद जनाब जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप लिंक्डइन का नाम सुना होगा, linkedin.com है, linkedin.com। यहाँ पे जाके आपने कोई गिग नहीं लगानी, या यहाँ पे जाके आपने कोई अकाउंट इस तरह से पोस्टिंग नहीं करनी। आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बना के आपने यहाँ पे सर्विस के बारे में बताना है कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, ये मैंने वहाँ पे सर्टिफिकेशन की हुई है, बल्कि दराज यूनिवर्सिटी से आप सर्टिफिकेशन भी लें और लेके यहाँ लगाएं कि जी मैंने यहाँ पे ये कोर्स किया हुआ है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। और फिर आप डेली बेस पे वहाँ पे अपलोडिंग करते रहें और साथ साथ सर्चिंग भी करते रहें। यहाँ पे लोगों ने खुद भी एड्स लगाए होते हैं, वहाँ से भी देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आपको बता रहा हूँ वो है indeed.com। इसका भी नाम आपने सुना होगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जो जॉब्स आई हुई होती हैं उनको देखते हैं, फाइंडिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं और ख़ुद भी अपनी सीवी को शेयर करते हैं। लोग उनसे खुद टच करते हैं, यानी कि यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप खुद भी क्लाइंट फाइंड आउट करेंगे और आपको भी जो ऑनर हैं वो आपको खुद हायर करेंगे। तो इंडीड पे भी अपना अकाउंट क्रिएट करें और इसकी एक रिज्यूमे बना के अपने एक्सपीरियंस के वाले से यहाँ पे शेयर करें। उसके बाद एक और ऑप्शन जिसको मैंने यूज़ तो अभी तक नहीं किया, लेकिन इसको भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो है Pinterest.com। Pinterest पे भी आपने इसी तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद और वहाँ पे भी आपने अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो सर्विसेज हैं, वो आपने पोस्ट के सूरत में आपने शेयर करते रहनी है और अपनी प्रोफाइल उस वाले से सेपरेट बना लेनी है कि आप दराज वर्चुअल असिस्टेंट के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये आती है कि आप चूँकि आप दराज का सारा कुछ सीख चुके हैं, दराज के बारे में आप सारा कुछ सीख चुके हैं ना, अगर आप फिर भी आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो एक अनदर ऑप्शन आपके पास ये है कि एक साइड ऑप्शन आपके पास ये है कि दराज के ऊपर भी जॉब्स आती रहती हैं। जब आप दराज का सारा कुछ सीख जाएंगे तो आपको अगर दराज की कोई जॉब आती है वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको हायर कर लेंगे। तो आपने वो कहाँ जाके अप्लाई करना है वो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दराज.com और करियर्स। आपने
ये खोल लेना। या दूसरी ऑप्शन एक तो ये है, ये भी स्क्रीन पे आप पहले देख लें, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी इनकी जॉब को अवेलेबल होगी तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और दूसरी ये है कि careers.daraz.com, यहाँ पे भी अगर आपको अपनी जॉब लिखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और वेरी लास्ट ऑप्शन आपके पास और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आपका अपना ब्रांड। मीन्स यानी कि आपकी अपनी वेबसाइट, आपको कहीं जाके अपलोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने नाम से, अपने या अगर कोई इंस्टीट्यूट को इदारा बनाया उसके नाम से आपने वेबसाइट बना लेनी है और उसके बाद वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। एक ब्लॉग का वहाँ पे पेज बना लेना है, वहाँ साथ ब्लॉगिंग करते रहें, आजकल से अपलोडिंग करते रहें, अपडेट्स देते रहें और साथ वहाँ से आप क्लाइंट हायर कर सकते रहें। उसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस फिलहाल में मेरा नाम शहरोज़ है, तो मैं कहता हूँ shehroz.daraz.va.com। अब इसमें दराज भी आ गया, मेरे ब्रांड का नाम, मेरा नाम भी ब्रांड बन गया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्चुअल असिस्टेंट हूँ मैं। इसलिए एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ कि एक ये बंदा है, इसने बनाई हुई है अपनी वेबसाइट yourdaraz.com के नाम से, yourdarazva.com के नाम से। स्क्रीन पे आप देखिएगा, ये देखिए, ये इस बंदे ने एक अपनी वेबसाइट बनाई है और ये क्या कर रहा है, yourdarazva विल हेल्प यू रन अ सक्सेसफुल दराज बिजनेस। एक पूरी इसने वेबसाइट बनाई है, आप उसको एक्सप्लोर कर कीजिएगा। मैं आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये पूरी इसने एक वेबसाइट बनाई है। ये बंदा है, मेरा ख्याल है शायद इसने, ज़ाहिर महमूद है कोई, शायद इसने बनाई है ये। आदिल महमूद है सीईओ उसका। तो इसने बनाई है ये। और देखें ये वेबसाइट है, ये सर्विसेज सारी प्रोवाइड करें, स्टोर क्रिएशन, प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग शिस्टिंग, ये वो रास 3PL सारा कुछ यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करें। साथ व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। तो ये इन्होंने यहाँ पे केस स्टडी भी दी हुई है, सर्विसेज लिखा हुआ है, LMS भी दिया हुआ है, अगर कोई सीखना चाहता है तो वो भी सीख ले। तो ये सारी सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं। इन सारी सर्विसेज को यूज़ करते हुए आप भी अपना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं, और जो क्लाइंट है वो भी आपको ढूंढ के काम दे सकता है। दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अच्छा जी, लास्ट जो एक ऑप्शन है वो ये है कि हाउ टू गिव सेलर सेंटर एक्सेस टू वर्चुअल असिस्टेंट। मतलब कि आप ऑनर हैं, भले आप जानते हैं दराज का काम, आप ऑनर हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं बंदा जो हायर कर रहा हूँ ना, उसको मैं एक लिमिटेड सी एक्सेस दूँ या कोई स्पेसिफिक एरिया में उसको एक्सेस दूँ, ताकि वो अपना उसी डोमेन के अंदर रहते हुए काम करे, मेरी किसी और चीज़ को ना देखे। तो वो वर्चुअल असिस्टेंट को एक्सेस कैसे दी जा सकती है, कैसे चेंज की जा सकती है, कैसे ऐड की जा सकती है, कैसे डिलीट की जा सकती है, वो स्क्रीन पर चलते हैं और इसको समझते हैं और फिर इस कोर्स को एंड करते हैं। वीवर दराज सेलर सेंटर में लॉगिन करने के बाद आप देखें यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको मेन्यू नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है अकाउंट एंड सेटिंग। यहाँ है देखें यूज़र मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप देखें स्क्रीन पे, तो ऑलरेडी जो एक ऑनर का जो अकाउंट है जिसके अंदर सेलर फुल एक्सेस है, ये हम आपका ऑलरेडी जो आपका अकाउंट बना हुआ है, पहले ये एक ईमेल शो कर रहा होगा जो आपके होगी, जो ऑनर की होगी। अब आप चूँकि किसी आप कोई अपने एम्प्लॉय हायर कर लिए या आपने कोई वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लिया, अब आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप ये देखें ऐड यूज़र का बटन लिखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन आ रही है रोल्स की। रोल्स प्लीज सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो एरो बना हुआ है यहाँ देखें, यहाँ लिखा है फुल एक्सेस, सेलर कैटलॉग एक्सेस, सेलर ऑर्डर एक्सेस, सेलर एपीआई प्रोडक्ट एक्सेस, स्टॉक ब्रांड यूज़र, सेलर डेकोरेट शॉप, सेलर रीड ओनली, जूनियर चेयर प्रोडक्ट फाइनेंस। और उसके अलावा आप देखें सेलर फुल एक्सेस एक्सेप्ट फाइनेंस प्रोमो और प्रोफाइल। इनके अलावा आप फुल एक्सेस देना चाहते हैं, सेलर टूल फुल एक्सेस देना चाहते हैं आप, या चैट एंड रिव्यू। अच्छा जी, या सेलर स्टॉक ऑर्डर एंड चैट एक्सेस, सेलर ऑर्डर एंड चैट एक्सेस आप क्या देना चाहते हैं, ये बात के ऊपर है। मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो ये कि मैं आप सबसे पहले कहता हूँ जी प्रोडक्ट लिस्ट टेस्ट। मैं बल्कि इसको नहीं, मैं यहाँ पे ऊपर एक है सेलर ऑर्डर एक्सेस, सिर्फ ऑर्डर के लिए मैं बंदा रखना चाह रहा हूँ। मैंने ऑर्डर एक्सेस पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे उस बंदे की ईमेल एड्रेस दूंगा कि जिस वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया उसकी। अब मैं उसका बंदे का नाम ऐड करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे उसके लिए एक पासवर्ड जनरेट कर दूंगा जिसको लॉगिन करते हुए वो यहाँ पे एक्सेस हासिल कर लेगा। अब मैं इसके बाद सेव कर दूंगा। अब आप देखें तो पहले एक ईमेल आ रही थी और अब 2 ईमेल आ रही हैं। अब उस बंदे का नाम आ गया जिसको मैंने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया है। अब उसको मैंने एक्सेस दे दी है। अब होगा क्या कि मैंने ईमेल पे जाके इसको मज़ीद वेरीफाई करना है, तो देन ये एक्टिव हो जाएगा। अब आप यहाँ से अगर चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं।
मैं छोटा-सा सिर्फ़ इसका लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि ये लॉगिन कर पाता है मेरे अकाउंट में या नहीं, और यहाँ से दराज़ का शेयर सेंटर खोल के और एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। तो व्यूअर्स हमने उसी एज़ यूज़र को यूज़ करते हुए लॉगिन किया। अब हम देखते हैं, मैंने तो आप एक्सेस दी थी ऑर्डर की, सिर्फ़ ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो क्या प्रोडक्ट खुलती हैं? तो व्यूअर्स देखिए, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलने की कोशिश की, तो वो क्या कह रहा है, यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू और एडिट दिस पेज, मतलब कि हमने जो एक्सेस दी है सिर्फ वही मिली है, इसके अलावा एक्सेस नहीं मिली। व्यूअर्स मैंने बहुत अच्छे से दराज वर्चुअल असिस्टेंट को समझाने की आपको कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।